गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू mass points m1 and m2 and the force between these two particles m1 and m2 is due to an interaction potential u, and that u, the interaction potential, is a function of magnitude of the distance between the two particles, or you can say it is a function of the distance only. Dear students, let this point is the center of mass of our two particle system, and from this center of mass r2 and r1 are the position vector relative to the center of mass. So this red line is position vector of m2 relative to m1, and r2 is the position vector of m2 relative to center of mass, and similarly r1 is the position vector of m1 relative to center of mass. So this one is r2, this one is r1, and I write it here r2 minus r1 magnitude. So dear students, this one is r2, and when you take minus r1, so r1 will be opposite of that. So these minus r1 and r2 will collectively make r. So I write it here r. ये एक नेसेसरी कंडीशन है हमारी कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये इन दोनों पार्टिकल्स के सेपरेशन पर ही डिपेंड करती है, ये और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। हमने एक आर्बिट्रेरीली एक रेफरेंस सिस्टम, रेफरेंस फ्रेम हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जिसका ये ओरिजिन है यहाँ से, और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है बच्चों कैपिटल आर। डियर स्टूडेंट, द फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, or equivalently we can say the potential energy between m1 and m2 is independent of this location of this O as well as the velocity of this reference frame. हम जब इसमें इक्वेशन करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये बात आएगी भी कि जब फोर्स एज वेल एज द इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ दिस O. And this is the, you can say, criteria. This is a criteria and a very essential criteria for any central force. And dear student, this system has 6 degrees of freedom, or we can say we require 6 independent variables to completely explain the system. 3 components for R and 3 components for lowercase r, this red r. So total 6 degree of freedoms is required. And let's start this topic by writing the Lagrangian for the system. So the Lagrangian for the system will be like this: kinetic energy minus potential energy. Here kinetic energy is actually consists of 2 terms, one due to capital R dot and second due to lowercase r dot. काइनेटिक एनर्जी को हम थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं। T will be half m1 plus m2 r dot square plus half m1 r1 dot square plus half m2 r2 dot square. Dear students, this is kinetic energy of center of mass, and this is kinetic energy about center of mass. So we have 2 terms. First is kinetic energy of the center of mass. Second term, this is the second term, and this is the kinetic energy about the center of mass. Suppose
हमारा जो सिस्टम है इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, सो एक काइनेटिक एनर्जी तो इसकी वो हो गई। दूसरी काइनेटिक एनर्जी ये है कि ये रोटेट करने के साथ साथ मान लो ट्रांसलेशन मोशन भी इसमें है, लाइक दिस ऐसे चोक अब ऐसे जा रहा है तो इसमें रोटेशनल मोशन भी है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास भी है एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है। इसका एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आपके साइकिल का जो पहिया है उसमें दो काइनेटिक एनर्जी होती है। एक तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है कि पहिया आगे चल रहा है, दूसरा उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो घूम भी रहा है। तो वही केस इसमें हम मान सकते हैं। यहाँ पर जो R1 R2 है इसको हम R की टर्म में एक्सप्रेस करना चाहेंगे, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा हमारी जो सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है वो। सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लिख सकते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल्स 0। दिस इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरा हम डायग्राम से यहाँ से लिख सकते हैं कि वेक्टर R इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अभी मैंने आपको यहाँ से बताया था कि R2 ये है, इसका डायरेक्शन इधर, R1 इधर है, तो अगर मैं माइनस R1 करता हूँ तो ये फ्लिप हो जाएगा और R विल बी द सम ऑफ R2 एंड माइनस R1। और अच्छे से अगर आपको समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि R2 प्लस माइनस R1 हमें R देता है, दिस रेड वन वेक्टर। नाउ फ्रॉम दिस, अब इसमें से आप R1 एलिमिनेट करना चाहते हैं कि R2 एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम एक को निकालेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लिख सकते हैं M1 R1 इज इक्वल टू माइनस M2 R2 एंड डियर स्टूडेंट दिस इंप्लाइज R2 इक्वल्स, R2 आप इधर रख लीजिए, माइनस M1 अपॉन M2 R1 वेक्टर। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ R2 इन दिस इक्वेशन। आपके पास आ जाएगा R इक्वल्स माइनस M1 बाई M2 R1 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको तो आपके पास आ जाएगा माइनस R1, यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे, माइनस भी कॉमन ले लेंगे, आपके पास अंदर बचेगा M1 प्लस M2 अपॉन M2। माइनस जो था ये बाहर आ गया तो अंदर प्लस हो गया। R1 उधर रखिए, बाकी सब इधर ले आइए, आपके पास आ जाएगा माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 R वेक्टर इज R1 वेक्टर। और प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे आवश्यकता है R1 डॉट की। आप इसका दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 R डॉट इज इक्वल टू R1 डॉट। एंड सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे R2 डॉट भी ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये है कि R1 का वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो, आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। या स्टार्टिंग से इसको करना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे R2 निकाल करके इस वैल्यू में रखा, आप यहाँ से R1 का वैल्यू निकाल करके इसमें रख दीजिए, आपके पास R2 आ जाएगा। एंड अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, you will get R2 dot is M1 over M1 plus M2 R dot। अब ये दोनों के दोनों जो वैल्यू है R1 डॉट का और R2 डॉट का, ये हम यहाँ रख देंगे। ये R2 डॉट का वैल्यू आ जाएगा, ये R1 डॉट का वैल्यू आ जाएगा। एंड देन काइनेटिक एनर्जी, और अब काइनेटिक एनर्जी क्या हम पूरा लैग्रांजियन ही लिख देते हैं, लैग्रांजियन सीधा लिख देते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। और देखिए इसमें थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा, ये वैल्यूज यहाँ पर रखने के बाद आपको थोड़ा सा और मैथमेटिकल ग्राइंड अप करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द फाइनल लैग्रांजियन। तो मैं वो आपके लिए एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। एंड वी गेट द फाइनल लैग्रांजियन
L equals half m1 plus m2 capital R dot square plus half m1 m2 upon m1 plus m2 R dot square माइनस यू आर। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं। L इज हाफ कैपिटल M R डॉट स्क्वायर। देखिए कैपिटल M का मतलब क्या है? द सम ऑफ टू सिस्टम मास पार्टिकल्स, क्योंकि अगर हमने दोनों का सम कर लिया तो वी गेट द मास ऑफ द सिस्टम, प्लस हाफ this quantity m1 m2 by this quantity is known as mu or called reduced mass। इसमें हाफ को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। दिस m1 m2 by m1 plus m2 is mu and R डॉट स्केयर माइनस यू आर। ठीक है बच्चे। अब इसमें अगली इसके इक्विवेलेंट यानी हालांकि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई आई हैव रिटन दिस। लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो इक्विवेलेंटली L can be written as half mu R dot square minus U R। हम ये कह सकते हैं कि लैग्रांजियन ये और ये इक्विवेलेंट है। अब ये इक्विवेलेंट कैसे हैं उसके पीछे मैं आपको दो इसमें लॉजिक बताऊंगा कि इक्विवेलेंट कैसे हैं। पहला लॉजिक ये है कि हम कभी भी किसी सिस्टम का लैग्रांजियन लिखते हैं तो देखिए हम उसको केवल लैग्रांजियन तक नहीं छोड़ते। लैग्रांजियन हमने किसी सिस्टम का लिख दिया तो उसके पीछे फिर हम उसको इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लैग्रांजियन प्राप्त करते हैं। तो जब हम यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे फॉर आर, ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर आर इज सेम for both the Lagrangian। यानी अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है आर की, वो लिखते हैं ना डी बाई डी टी कर लिया एल बाई कर लिया आर डॉट माइनस है ये करके, तो वो चाहे आप इससे लिखें या चाहे आप इससे लिखें, यू विल गेट द सेम आंसर। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे आप ये प्रयोग करें चाहे ये प्रयोग करें, यू विल गेट द सेम आंसर। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आप मान लो किसी दुकान पर जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं, वो कहते हैं जी 50 रुपये का हो गया, चाहे कैश दो चाहे ऑनलाइन दो, बात एक ही है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। बट इसमें ये हम सोच सकते हैं भाई इक्विवेलेंट कैसे हैं। ये इसमें एक टर्म है जो ऐड हुई है, ये वाली टर्म आप कहाँ पे भेज सकते हैं। इसके पीछे एक और लॉजिक मैं आपको ये बताऊंगा कि इस लैग्रांजियन में आप अगर ध्यान से देखें आर नहीं है, आर इज साइक्लिक। तो साइक्लिक है तो क्या है, एम आर डॉट विल बी कांस्टेंट, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए एम तो कांस्टेंट है ही, एम आर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि एम इज ऑलरेडी कांस्टेंट। So R is cyclic, and if R is cyclic, mr dot will be constant, and if mr dot is constant, then mr dot square and half is also constant। अब ये कांस्टेंट हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ा? इससे बच्चे ये फर्क पड़ा कि आपने अपनी एलिमेंट्री फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, ये आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया।
तो ये जो आपका आंसर होता है ना, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लो अभी मैं ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं ये कहूं कि ये जो मेरे पास चौक है इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो आप कहेंगे जी mgh। मैंने कहा व्हाट इज h, आप बोलेंगे कि जो फरस है यहाँ से इसका हाइट नाप लीजिए, ये mgh होगा। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड एट फर्स्ट फ्लोर। सो कहाँ से आप हाइट लेंगे? आप नीचे वाले फर्श से लेंगे कि इस वाले फर्श से लेंगे? अब आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो आंसर इज कि आप जो है कोई भी रेफरेंस पॉइंट इसमें ले सकते हैं। इवन आप छत को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में आप कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स टोटली ऑन द रेफरेंस लेवल विच यू आर कंसिडरिंग एंड यू आर टोटली फ्री टू चूज द रेफरेंस लेवल। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि मेन बात यह है कि हम जब पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी यूज करते हैं फिजिक्स में तो दो ही चीज यूज करते हैं, और वो दो चीज कौन कौन सी है पोटेंशियल एनर्जी के साथ? कभी भी फिजिक्स में आप देख लेना, तो पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे तो दो ही चीज यूज करेंगे। या तो हम यूज करेंगे डेल्टा यू, यानी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टू लेवल। तो अगर आप इस mgh में मान लो कोई भी कांस्टेंट जोड़ देते हैं, से k जोड़ दिया, अगर आप इसका डिफरेंस करते हैं किसी दूसरी पोटेंशियल एनर्जी के साथ, उसमें भी k जोड़ा हुआ है, तो जब आप डिफरेंस करेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसी भी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बशर्ते जिन दो लेवल की हम बात करें जिनके बीच में डिफरेंस लेने, वो ऐड दोनों में होगा, सब्ट्रैक्ट दोनों में होगा। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का हम कहीं भी यूज करते हैं फिजिक्स में, तो हम उसका करते हैं डेरिवेटिव। तो करली यू बाई करली आर हमने यूज किया। मान लो मेरे पास यू का एक वैल्यू है mg_r, इसमें अगर मैं कोई कांस्टेंट जोड़ता हूं तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो दिस विल बी 0। ठीक है, तो इसलिए आप ये जो कांस्टेंट है आप इसको इसमें एब्जॉर्ब कर दो, बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें एब्जॉर्ब कर देंगे और हमारा लैग्रांजियन बन जाएगा हाफ म्यू r डॉट स्क्वायर माइनस यू आर। क्लियर? तो आपकी मर्जी है, अब आप इसको कौन से लॉजिक से इक्विवेलेंट समझते हैं, चाहे पहले वाले से समझ लो कि आर की इक्वेशन के लिए ये दोनों से जो आंसर आएगा हमारा सेम आएगा, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, या ये समझ लीजिए कि जो कांस्टेंट है इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब ये जो लैग्रांजियन बना है, अब मान लो हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां ले लेता हूं मैं, जगह नहीं है। सपोज आई हैव ए पार्टिकल, ध्यान से सुनना बच्चे, आई हैव ए पार्टिकल एंड इट्स मास इज से m, एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग इन ए फोर्स फील्ड। ठीक है, देखिए फोर्स फील्ड कहा, यहां पे क्या होता है कि फोर्स फील्ड जहां है वहां एक पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। मैंने कहा भाई इसका ना आप लैग्रांजियन लिखिए, तो आप इसका लैग्रांजियन लिखेंगे L इज इक्वल टू से, उस L से अलग करने के लिए मैं इसको से L, ये वाला L कर देता हूं। ठीक है, L इज हाफ m r डॉट स्क्वायर, ये लिखेंगे आप, माइनस इसका पोटेंशियल एनर्जी से VR, आप ये लिखेंगे। दिस इज द लैग्रांजियन फॉर ए सिंगल पार्टिकल मूविंग इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड। अब इसको और इसको आप मिला के देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, बस m की जगह क्या है, म्यू है। तो जो हमारे टॉपिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो दो फोर्सेज हैं, दो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, उनको आप ये मान सकते हैं कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है। समझ गए? पूरे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव यही है समझना कि जो हम दो पार्टिकल्स मान रहे हैं, आप उसको एक पार्टिकल मान लीजिए कि वो एक पार्टिकल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है, और वो एक पार्टिकल अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो फिर इसका मास आपको क्या लेना पड़ेगा, म्यू, एंड म्यू वाज m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ये आपको लेना पड़ेगा। इसका नाम भी है रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो दो पार्टिकल का जो प्रॉब्लम था वो सिंगल पार्टिकल की प्रॉब्लम में आ गई। हमने कुछ नहीं करना,
सबसे पहले जो दो पार्टिकल हैं उनका रिड्यूस्ड मास निकालना है, और फिर जो उनके बीच का इंटरेक्शन पोटेंशियल है वो पता करना है, और इस वैल्यू में रख देना है। अब ये एक्चुअल में सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। सो टू पार्टिकल से ये सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है। और प्यारे बच्चों, अब ये हमारा जो काम है पहले से काफी आसान हो गया है, ठीक है। इसमें एक बात तो हमने यहां पे ध्यान देनी है कि ये जो रिड्यूस्ड मास है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/μ इज 1/μ1 प्लस 1/μ2। आप इससे भी कर सकते हैं इसको, और आई एम सॉरी दिस इज m1 m2। एंड कई बार पूछ लेते हैं, साथियों ने पूछा कि यार इसको रिड्यूस्ड मास क्यों कहते हैं, रिड्यूस्ड मास। तो एक काम करिए, आप ये जो फॉर्मूला है ना ये मैंने लिखा है, इसमें m1 को ले लीजिए 2 kg और m2 को ले लीजिए 3 kg, और फिर आप इससे म्यू निकालिए। तो जो आपका म्यू आएगा दैट म्यू विल बी लेस देन 2 kg, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मतलब जो चीज घट जाए, यानी आप यहां देखिएगा कि ये जो लैग्रांजियन लिखा है ये तो पूरे सिस्टम के लिए लिखा है, कंप्लीट सिस्टम के लिए, बट यहां जो मास यूज हुआ है वो कंप्लीट सिस्टम का जो हमारा मास था m1 प्लस m2 उतना नहीं है, ये कम है। ये m1 प्लस m2 से कम नहीं है। ये दो पार्टिकल जो आपने लिए, उन दोनों पार्टिकल्स में जो सबसे कम मास वाला पार्टिकल है, 3 और 2 में ये कम है, हमारा रिड्यूस मास उससे भी कम आएगा, 2 से भी कम आएगा। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, रिड्यूस्ड मास हमारा 2 से भी कम आएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। सो लैग्रांजियन इज फॉर कंप्लीट सिस्टम बट मास इज रिड्यूस्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां एक और यहां समझने का है, ये जो R है ना इसको थोड़ा समझिए कि R क्या है। तो अगर हम डायग्राम में आएंगे तो ध्यान से देखो R क्या है। R ये है पहले पार्टिकल से और दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ये बस ध्यान रखना। आप ये गलती मत कर देना कि R ये ले लो, ये कैपिटल R है, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहां आपने देखा कि हमारा जो L था उसमें R नहीं था। दैट्स व्हाई आई सेड R इज साइक्लिक एज वेल एज R डॉट इज साइक्लिक, ठीक है, दोनों साइक्लिक है। आप देखो इसमें कहां है R डॉट, आप कहेंगे सर यार इसको तो हमने एब्जॉर्ब कर दिया इसके अंदर UR के अंदर। सो R इज साइक्लिक एज वेल एज R डॉट इज साइक्लिक। सो we can easily say that R dot, small r dot, I'm sorry, small r dot and R are independent of the location of this origin as well as the velocity of this origin. So it must have to kept in our mind कि जो हमने लोअर केस r लिया है, ये जो लोअर केस r है ये क्या है, ये m1 से m2 का पोजीशन वेक्टर है। तो हमारा जो ओरिजिन हुआ इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में वो m1 हुआ, ना कि ये वाला ओरिजिन, ठीक है। आप हाँ ये कर सकते हैं कि आप इसको उल्टा ले सकते हैं, यानी आप इसको भी ओरिजिन मान सकते हैं और यहां से पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, यहां से जो पोजीशन वेक्टर लेंगे उसको आप r मान लीजिए, वो कोई बात नहीं, ठीक है। आप में बस क्या चेंज आएगा, इसमें विशेष कोई चेंज आना नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा कि यहाँ पे r का मैग्नीट्यूड यूज हुआ है, चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, बात तो एक ही है, ओके। सो इट मस्ट हैव टू केप्ट इन माइंड कि हमारा जो ओरिजिन है वो एक मास पार्टिकल है, ना कि ये वाला, ठीक है। और थोड़ी एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में हो सकता है या अलग हो। मैंने जो यूज किया है डायग्राम ये H गोल्डस्टीन से यूज किया है, तो अगर आपको इसमें रेफरेंस और भी देखना पड़े तो H गोल्डस्टीन से आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।